Good morning, students. Welcome in social science virtual class. I hope all of you will be fine. Students, today we will continue and complete chapter 4 of history, that is tribals, the Kus, and the vision of a golden age. We have discussed in our previous virtual class how did tribal groups live, कि ट्राइबल ग्रुप्स किस तरह से रहते थे. स्टूडेंट्स, सम वर झूम कल्टीवेटर्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ झूम कल्टीवेटर्स? झूम कल्टीवेटर मीन्स ट्राइबल ग्रुप्स फर्स्ट cleared the forest and then burnt them, mixed the ash into the soil and used them to grow the crop. When they get the harvest and then they shift to the other areas. क्या करते थे स्टूडेंट्स? वो फॉरेस्ट को जला देते थे, उसकी राख को सोइल में मिक्स कर देते थे, फिर उसे क्रॉप्स को ग्रो करने में यूज़ करते थे. और व्हेन दे गेट दी क्रॉप्स, जब उनकी हार्वेस्ट क्रॉप्स तैयार हो जाती थी तो स्टूडेंट उसको काटने के बाद वो दूसरे प्लेस पर शिफ्ट हो जाते थे. इसे कहा जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, झूम कल्टीवेशन. स्टूडेंट, सम वर हंटर्स एंड गैदरर्स. कुछ करते थे झूम कल्टीवेशन एंड अदर्स वर hunters and gatherers. They lived by hunting the animals and gathering forest produce, and some herded animals, reared the animals and move their animals from one place to another place. Student, some tribes took settled cultivation. Some began settled at one place, start growing crops and using the land again and again for growing the crops. Some became very powerful and become chief, and they gave their land to farming to others. Students, so what was happened to them during the British rule? How did colonial rule affect the tribals? स्टूडेंट, जो ट्राइबल थे सभी का लाइफस्टाइल एक जैसा नहीं था. कुछ करते थे झूम कल्टीवेशन, सम हर्डेड द एनिमल्स, सम टुक सेटल्ड कल्टीवेशंस एंड सम वर हंटर्स एंड गैदरर्स. तो कॉलोनियल रूल ने उनकी लाइफ को कैसे अफेक्ट किया? व्हाट हैपन टू द ट्राइबल चीफ्स व्हेन ब्रिटिश won the territories and ruled our country? They also controlled the which areas? Tribal areas, forest areas. So what was the power of head chiefs were taken from them? They became representative of the Britishers and asked them कि you can keep your land titles but you have to follow the rule and regulations of the Britishers. So power of the heads, power of the chiefs declined during the British rule. What happened to the shifting cultivators? Students, it was difficult for them, Britishers, to collect taxes from the shifting cultivators. They move one place to another place. So what was happened to them, students? They asked them to settle at one place. So when they settled at one place, land was not fertile. They would fail to get the crops. So they failed to pay taxes to the Britishers and also they revolted against the Britishers. So finally, ultimately, British permitted them to do the झूम कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन. जब उन्होंने उनको परमिट किया कि आप एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर फार्मिंग कर सकते हो, क्योंकि ना तो उन्हें टैक्सेस मिले और रिवोल्ट भी होते चले जा रहे थे, तो हार कर ब्रिटिशर्स को उन्हें एलो करना पड़ा शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए और
झूम कल्टीवेशंस के लिए। स्टूडेंट, फॉरेस्ट लॉ and their impact. What was the impact of forest laws on the tribals? The life of tribals was directly connected to the forest. So changes in forest laws had a considerable effect on the tribal lives. British extended their control over all forests and declared that forests were state properties, and some forests were classified as reserve forest for their produced timber which British wanted. In these forests, people were not allowed to move freely, practice jhum cultivation, collect fruits and hunt animals. Students, जब ब्रिटिशर्स का रूल नहीं था तो ट्राइबल्स फ्री थे टू मूव हेयर एंड देयर, to do the jhum cultivation. But what was happened when Britishers control the whole territories and also tribal area? So they declared some forest as रिजर्व फॉरेस्ट. उसमें वो फ्रीली इधर उधर मूव नहीं कर सकते, फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट नहीं कर सकते. सो व्हाट वाज हैपन इन दीज फॉरेस्ट? पीपल वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली, practice jhum cultivation, collect fruits or hunt animals. Student, but what it also adversely affect the tribals and also the British rule. So when they stop them to live in the forest, they need labor to cut the forest, to collect the timbers. So what was it was difficult for them to make arrangement for the labor to cut the forest for railway tracks. So but then British officials came up with the solutions. They decided they would give jhum cultivators small patches of land in the forest and allow them to cultivate these on the conditions that those who lived in the village would have to provide labor to the forest department, look after the forest. तो उन्होंने जब उन्हें परमिशन दी कि आप फॉरेस्ट के पास जो विलेजेस हैं वहाँ पर रहेंगे, बट यू हैव टू, व्हेन ब्रिटिश नीड द लेबर to cut the forest, then they provide these services to the Britishers. But student, their life was very difficult under the British rule. यहाँ पर स्टूडेंट्स एक आपको पोएम दी गई है ट्राइबल्स की जो वो गाया करते थे. In 1930, Warrior Elvin visited the land of Begas. Why? He wanted to know about them, their custom, practices, their art and folklore. उनके बारे में, उनके कस्टम क्या हैं, ट्रेडिशंस क्या हैं, इनको जानने के लिए उन्होंने वहाँ विज़िट किया और कुछ पोएम जो वो गाते थे वो उसको यहाँ पर लिखा गया है. तो क्या है बेटा ये पोएम, ये देखिए. इन दिस लैंड ऑफ इंग्लिश हाउ हार्ड इट इज़ टू लिव, हाउ हार्ड इट इज़ टू लिव इन द विलेजेस सिट्स द लैंडलॉर्ड, in the gate sits the kotwar, in the garden sits the patwari, in the field sits the government. हर जगह कहीं लैंडलॉर्ड बैठा है, कहीं कोतवाल पुलिस वाला, कहीं पटवारी हैं टैक्स को ले, और कहीं पर गवर्नमेंट. In this land of English, how hard it is to live. To pay cattle tax, we have to sell cow. To pay forest tax, we have to sell buffaloes. To pay land tax, we have to sell buffaloes. To pay land tax, we have to sell bullocks. How we to get our food in this land of English? Students, to pay cattle tax, cattle जो काउस उन्होंने रखी हुई थी, गायें रखी हुई थी, उनके लिए उन्हें क्या सेल करना पड़ा. इन दिस लैंड टू पे कैटल टैक्स वी हैव टू सेल काउ, काउ को बेच दिया. टू पे फॉरेस्ट टैक्स वी हैव टू सेल, और फॉरेस्ट में जो रह रहे थे उसके लिए बफेलो को सेल कर दिया. और लैंड का टैक्स देने के लिए टू सेल बुक्स को बेच दिया. सो टू पे, सो हाउ हार्ड वी गेट टू और आर फूड.
कितना मुश्किल था उनके लिए फूड कलेक्ट करना। दिस पोएम टेल अस कि हर जगह उन्हें टॉर्चर किया जा रहा था, एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। वेरी डिफ़िकल्ट टू लिव अंडर द ब्रिटिश रूल। स्टूडेंट्स, when tribal people faced so much difficulties, so they revolted against the Britishers and they disobeyed the British law and did the practices in the forest. उन्हें फॉरेस्ट में घूमना फिरना मना था, पर उन्होंने इसको फॉलो करने से मना कर दिया। दिस दे disobeyed the new laws, continued the practices that were declared illegal, and at times rose in open rebellion. So they revolted in 1906 in Assam, in 1930 in central provinces. So in this way we discuss कि how life was difficult for tribals during the British rule, the problems with the trade. Now we are going to discuss problems with the trade. During the 19th century, tribals group found that traders and money lenders were coming into the forest, more often wanting to buy forest produce, offering cash loans and asking them to work for wages. 19th सेंचुरी में स्टूडेंट कुछ मनी लेंडर्स ने, लैंडलॉर्ड्स ने फॉरेस्ट एरिया में आना शुरू कर दिया और उन्हें से क्या खरीदना चाहते थे, उनके फॉरेस्ट श्रब्स, हर्ब्स, वुड खरीदना चाहते थे और उनको ऑफर भी किया कि वो उनके लिए एज अ लेबरर काम भी कर सकते हैं। स्टूडेंट, इट टुक ट्राइबल्स ग्रुप सम टाइम टू अंडरस्टैंड कंसिक्वेंसेस ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग। स्टूडेंट, उन्हें ये लगा स्टार्टिंग में कि वो उनके वेलफेयर के लिए आए हैं, पर उन्हें बाद में पता चला कि they were not coming to forest area for their welfare, but they came to the forest areas, tribal areas to exploit them. Student, what was happen? उस समय इंडियंस का जो सिल्क था, it was great demand in Europe. So East India Company encouraged the Indians to grow the silk. So what was happen? Hazaribagh in present day Jharkhand was an area where the संथल reared the cocoon. संथल एक ट्राइबल ग्रुप का नाम है जो cocoons को, जो सिल्क वर्म्स होते हैं, उनको वो रियर करते थे। The traders dealing in silk sent their people and collected the cocoons. ककून से सिल्क को तैयार किया जाता है, मिडल मैन्स को भेजा कि उनसे परचेज करें। तो स्टूडेंट, वो किस प्राइस पर खरीदते थे? दे ग्रोअर्स वर पेड ₹3 to 4,000 ऑफ ककून्स। These were exported to Gaya where they were sold at 5 times the price. The middlemen so called because they arranged deals between the exporter and made huge profit, और सेल करते थे उससे 5 टाइम 15 to 20 रुपीज़ पर 1000, खरीदते थे 3 to 4 रुपीज़ पर 1000 कोकून्स और सेल करते थे स्टूडेंट 15 to 20 रुपीज़ पर 1000। तो मिडल मैन जो कुछ नहीं करते थे, देवर अर्निंग लॉट्स ऑफ प्रॉफिट एंड द सिल्क ग्रोअर्स अर्नड वेरी लिटल। So many tribal groups saw the market and traders as their main enemies. स्टूडेंट्स, यहाँ दिखाया भी गया है कि ट्राइबल्स क्या काम करते थे। कुछ को बास्केट्स बनाते हुए दिखाया गया है, यहाँ लूम पर काम करते हुए, कपड़ा बनाते हुए दिखाया गया है। एंड स्टूडेंट, कुछ ट्राइबल्स ने तंग आकर एज अ लेबर काम करना भी शुरू कर दिया, वही दिखाया गया, सर्च फॉर वर्क। So when they were exploited, they went to other areas for search of work. The conditions of tribals who had to go far away from their homes in search of work was very miserable. Students, they started working in tea plantation and mines. Tribals were recruited in large number to work in tea plantation of Assam and coal mines of Jharkhand. Students, tribal were recruited in
tea plantation, coal mines, they were appointed. Recruited means appointed. They were recruited through the contractors who paid them miserable low wages and prevented them from returning home. स्टूडेंट उन्हें लो वेजेस भी बहुत कम दी जाती थी और अपने घर वापस जाने से भी मना करते थे. सो दे बिकेम annoyed with the Britisher and started revolting against the Britishers. So the Coles revolted in 1831-32. Santhal rose in revolt in 1855. Bastar rebellion in central India broke out in 1910. वारली रिवोल्ट इन महाराष्ट्र इन 1940. स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक रिवोल्ट को. कौन सा? बिरसा रिवोल्ट, मुंडा रिवोल्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं. हु वाज बिरसा मुंडा, व्हाई दे रिवोल्टेड, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल. Birsa was born in student 1870. He was the son of a poor father, grew up around the forest of Bohanda, grazing sheep, playing the flute, dancing in the local akhada. Because of his father was a poor man, so they had to go one place to another place in search of work. Student, Birsa heard tales of Munda uprising of the past and saw Sardar's community urging the people to revolt. जो बिरसा के फादर थे उन्हें काम की तलाश में इधर उधर जाना पड़ा और उन्होंने बिरसा ने स्टोरीज भी सुनी थी कि किस तरह से मुंडास ब्रिटिशर्स से पहले रहते थे. They talked of a golden age when Munda had been free of the oppression of the Coos. They were free from the exploitation of Britishers and said there would be a time when the ancestral right of community would be restored. They saw themselves as the descendant of original settlers of the region, fighting for their land and reminding people of the need to win back their kingdom. उन्होंने क्या था कि हम पहले फ्री थे, हमारे ऊपर कोई रोक टोक नहीं थी, हम जंगल में कहीं भी जा सकते थे, वुड कलेक्ट कर सकते थे, झूम कल्टीवेशन कर सकते थे. बट ब्रिटिशर्स ने उनके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी. तो दे सेड कि अगर हम दोबारा से उस गोल्डन पीरियड को चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, तो वी have to revolt against the Britishers. So student Birsa went to local missionary schools and listened to the sermons. Sermons means teachings of missionaries. बिरसा लोकल मिशनरीज क्रिश्चियंस स्कूल में गए, उनकी टीचिंग सुनी और उन्होंने क्या कहा, देयर टू बी ही heard that it said it was possible for Mundas to attain the kingdom of heaven and regain their lost right. This would be possible if they became a good Christians and gave up their bad practices. अगर वो क्रिश्चियंस बन जाएं और बुरी आदतों को छोड़ दें तो वो दोबारा से गोल्डन पीरियड उनकी लाइफ में दोबारा से वापस आ सकता है. स्टूडेंट, later Birsa also spent some time in company of prominent Vaishnav. Vaishnav means devotees of Vishnu. बिरसा मुंडा ने कुछ समय विष्णु भक्तों के साथ भी बिताया. And what was he wore the sacred thread and began to value the importance of purity and piety. आपने घर में कई बार पंडित जी जब हवन करते हैं उनके गले में एक वाइट कलर का थ्रेड पहनते हैं जिसे जनेऊ कहा जाता है. उन्होंने वो भी पहना बिरसा मुंडा ने. और क्या कहा, किस बात पे जोर दिया कि हमें बिल्कुल ऑनेस्टी से, प्योरिटी से रहना होगा, तभी हम दोबारा से उस गोल्डन एज को वापस ला सकते हैं. बिरसा वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी ऑफ द आइडियाज ही केम अप इन टच विद इन हिज ग्रोइंग अप ईयर्स. स्टूडेंट्स, बिरसा ने जो ग्रोइंग अप ईयर्स
में जो सीखा क्रिश्चियन मिशनरी से, वैष्णव से, उसकी लाइफ को उसने बहुत इन्फ्लुएंस किया। उसने कहा कि अगर हमें गोल्डन एज को एस्टेब्लिश करना है, अपनी फ्रीडम को फिर से बनाना है, ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी लाइफ में सच्चाई, अच्छे वैल्यूज़ को दोबारा से सेटअप करना पड़ेगा, स्थापित करना पड़ेगा। सो इस मूवमेंट वाज एम्ड एट रिफॉर्मिंग tribal society. He urged the Mundas, he said the Munda to give up drinking liquor, clean their village, stop believing witches and sorcery, कि हमें गांव को साफ रखना होगा, शराब नहीं पीनी होगी, जादू टोने पर विश्वास नहीं करना होगा। इन दिस वे वी विल बी एबल टू अगेन सेटअप दी बिरसा राज, मुंडा राज, गोल्डन एज दोबारा से हम सेटअप कर सकते हैं। वी मस्ट रिमेंबर दैट बिरसा आल्सो टर्न अगेंस्ट मिशनरी हिंदू लैंडलॉर्ड्स। स्टूडेंट्स, बिरसा ने क्रिश्चियन मिशनरी के भी अगेंस्ट हो गए, क्योंकि जब उन्हें पता चला वो उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, लैंडलॉर्ड का जब पता चला वो उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उन्होंने ब्रिटिशर्स का नहीं, उन सबका विरोध किया जो एक्सप्लॉइट कर रहे थे। सो इन 1895 बिरसा अर्ज हिज फ्लोर टू रिकवर द ग्लोरियस पास। ही टॉक्ड ऑफ गोल्डन एज इन द पास। और हम उस गोल्डन एज को कैसे सेटअप कर सकते हैं, सच के रास्ते पर चलकर, अच्छाई के रास्ते पर। दे लिव्ड ऑनेस्टी। बिरसा आल्सो वांटेड पीपल टू वंस अगेन work on their land, settle down and cultivate their field. So student, all Mundas started revolting the Britishers. So Britishers were afraid from the Mundas. As movement spread, British official decided to act कि अब इनका कंट्रोल करना पड़ेगा। They arrested the Birsa in 1895, convicted him on the charge of royce and jailed him for 2 years. तो उन्होंने बिरसा को अरेस्ट किया कि उन्होंने उनकी वजह से दंगे हुए हैं, लड़ाई झगड़ा हुआ है, और 2 इयर्स के लिए जेल में बंद कर दिया। और जब बिरसा जेल से बाहर आए 2 इयर्स के बाद 1897 में, तो उन्होंने जगह जगह जाकर फिर से लोगों की सपोर्ट कलेक्ट करनी शुरू कर दी। ही यूज ट्रेडिशनल सिम्बल्स एंड लैंग्वेज टू रोज पीपल, अर्जिंग देम टू डिस्ट्रॉय रावना। यहाँ रावना किसको कहा है, दिकूस। दिकूस ब्रिटिशर्स, यूरोपियंस को कहा गया है कि अगर हमें फिर से राम राज्य, बिरसा राज एस्टेब्लिश करना है, तो हमें इकट्ठा होकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ना होगा, सच्चाई के रास्ते पर चलना होगा। बिरसा followers began targeting the symbols of Dikus like police station, churches, and raided the property of money lenders, zamindar. They raised a white flag as a symbol of बिरसा राज। तो उन्होंने एक फ्लैग भी बनाया कि हम दोबारा से अब ब्रिटिशर्स का राज नहीं होगा, हमारे ट्राइबल्स में, हमारे एरिया में हमारा ही राज होगा, बिरसा राज होगा। In 1900, Birsa died of cholera and movement faded out. However, movement was significant in at least 2 ways. 2 years के बाद 1895 में जेल से रिलीज हुए, 2 साल के 1895 में अरेस्ट हुए, 1897 में जब रिलीज हुए तो फिर से मुंडास को इकट्ठा किया रिवोल्ट के लिए स्टूडेंट, और कई जगह उन्होंने अटैक भी किया, पुलिस स्टेशंस, मनी लेंडर्स की प्रॉपर्टी पर स्टूडेंट 1900 में बिरसा मुंडा की डेथ हो गई। और उसके बाद ये मूवमेंट क्या हो गई, फेडेड हो गई, स्लो हो गई। पर स्टूडेंट ये मूवमेंट इम्पोर्टेंट है बिकॉज इट फोर्स द कॉलोनियल गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस लॉ सो दैट लैंड ऑफ द ट्राइबल्स कुड नॉट बी इजली टेकन ओवर बाय द कूज। It showed once again the tribal people had the capacity to protest against injustice and express their anger against the colonial rule.
तो इस बिरसा मुंडा की रिवोल्ट के कारण एक लॉ बना, जिसके कारण कि अब ब्रिटिशर्स दिकुस उनकी लैंड को आसानी से उनसे नहीं ले सकते थे। और इसने ये भी दिखाया कि ब्रिटिशर्स में कैपेबल है इनजस्टिस के अगेंस्ट लड़ने के लिए, और किस रास्ते पर चलकर, सच्चाई के रास्ते पर चलकर। तो स्टूडेंट, सच के रास्ते पर चलकर हम किसी भी बुराई को ख़त्म कर सकते हैं, वो चाहे कितनी ही पावरफुल क्यों ना हो। इसलिए स्टूडेंट, इसे दिखाया गया कि ट्राइबल्स वीक नहीं थे। जब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो इनके अगेंस्ट लड़ेंगे, रिवोल्ट किया, तो उन्होंने मजबूर कर दिया ब्रिटिशर्स को लॉ बनाने के लिए कि उनसे उनकी लैंड आसानी से नहीं ली जा सकती। और ये भी प्रूव हुआ कि सच के रास्ते पर चलकर हम किसी भी बुराई का अंत कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने इस लेसन में पढ़ा कि ब्रिटिशर्स किस तरह से रहते थे। स्टूडेंट्स, सम वर झूम कल्टीवेटर, जगह जगह जाकर वो फार्मिंग करते थे, क्योंकि एक बार फार्मिंग करके वो उसको छोड़ देते थे कि सॉइल अपनी फर्टिलिटी को रीगेन कर ले। सम हर्डेड एनिमल, सम टुक कल्टिवेशंस, हाउ दे वर अफेक्टेड विद ब्रिटिश रूल्स, देयर पावर्स डिक्रीज। और उन्होंने शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स को कहा एक जगह सेटल होने के लिए, बट व्हेन दे रिवोल्टेड, तो उन्हें परमिट करना पड़ा कि आप कहीं दोबारा से शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर सकते हैं। और स्टूडेंट, आज हमने डिस्कस किया कि हाउ ब्रिटिश लॉज अफेक्टेड दी ट्राइबल्स, कि उन्होंने किस तरह से उसको इम्पेक्ट किया। स्टूडेंट, जब लॉज बने, फॉरेस्ट लॉज बना, उन्हें कहा गया कि आप फॉरेस्ट में नहीं रह सकते, वुड कलेक्ट नहीं कर सकते, तो ब्रिटिशर्स फेस मैनी डिफिकल्टीज, सो अगेन दे अलो देम to live in the villages and provide them labor when they required। और इसके साथ स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया कि उन्हें कुछ ट्रेडर्स जो फॉरेस्ट एरियाज में आए, उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो उन्हें धीरे पहले तो समझ में नहीं आया कि वो उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, पर जब उन्हें समझ आया तो दे कंसीडर देम एज देयर एनिमीज। और ट्री प्लांटेशन, और उन्होंने कोल माइंस में भी काम किया, पर उन्होंने वहाँ पे भी देखा कि दे वर एक्सप्लॉइटेड बाय दी कॉन्ट्रैक्टर, सो देयर वर मैनी रिवोल्ट ड्यूरिंग दी ब्रिटिश रूल। तो आज हमने डिटेल में बिरसा मुंडा के रिवोल्ट को डिस्कस किया। उन्होंने सच्चाई के रास्ते पर चलकर ब्रिटिशर्स को फोर्स कर दिया कि वो लॉ बनाए कि किसी भी ट्राइबल्स की लैंड उनसे आसानी से नहीं ली जाएगी। फोर्स्ड देम टू मेक द लॉ सो दैट लैंड ऑफ ट्राइबल could not be easily taken over by the Ghus, and also show that the tribal people had the capacity to protest against the injustice and express their anger against the colonial rule. Students, read the lesson and also underline the important lines as I have marked in your virtual class in my book. Students, do the worksheet in your notebook and revise the previous lessons which we have done. Student, stay at home, stay healthy, maintain social distancing, wear the mask and wash your hands again and again. Keep learning, students. Thank you. Have a nice day.